اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا بتاؤں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں اور دعا کا طریقہ کیا ہے، تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت دعا میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس کو کرنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنے کے بعد پورے دل کے ساتھ کچھ اس طرح دعا کریں۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد اور عزت اور آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں علم دین سکھانے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی پابندی نصیب کر اور ہماری عبادتوں اور روزہ قبول فرما۔ یا اللہ، تو بیماریوں کو شفا عطا کر، جو بے زگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صحیح رستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں، انوار و برکت سے مال و مال فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ، حج مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، گنسکینہ اور جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ یا اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں شیطان اور دجال کے فتنے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، عورتوں کو بے پردگی سے بچا لے اور باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہمیں اور تمام مومنوں اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں ہمارے پیارے نبی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ یا اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، نام و اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ، اپنے حشر کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔
सुम्मा आमीन। सो नाजरीन, जब भी आप दुआ करें, दुआ करने से पहले दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर आपकी दुआ में कोई रुकावट आ रही है तो दुरूद इब्राहिम के साथ वो रुकावट दूर हो जाएगी। जब भी आप तन्हा बैठे तो कोशिश किया करें अल्लाह पाक से बातें किया करें। जल्दी ना किया करें कि अल्लाह पाक मेरी दुआ नहीं कबूल फरमा रहे हैं, इतने अरसा हो गए हैं मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। आपके लिए एक वक्त ऑलरेडी चुन लिया है अल्लाह पाक ने कि आपको इस वक्त ही वो चीज़ मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। हाँ, दुआएं बहुत है, बहुत सारी दुआ है, पर सब्र जिसको सब्र करना आ जाएगा उसकी दुआ इस दुनिया में भी कबूल हो जाएगी और आखिरत में भी उसके लिए अच्छाई हो जाएगी। तो नाजरीन, कोशिश किया करें, दुआ से बेहतर है आप जब भी नमाज पढ़े अल्लाह पाक से बातें किया करें, अल्लाह पाक से अपना दुख शेयर किया करें। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ बैठकर बातें करते हैं, इस तरह अल्लाह पाक के साथ वक्त गुजारा करें, अल्लाह पाक से बातें किया करें। हमें जल्दी ही इतनी है, हम सोचते हैं आज ही दुआ मांगी है तो आज ही कबूल हो जाए, और फिर हम एक ही दुआ के पीछे पड़े रहते हैं कि यही दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। अल्लाह पाक तो मेरी दुआ कबूल कर ही नहीं रहा है। थोड़ा सा अपने आसपास देखें, अपने करीब देखें, अपने अंदर देखें, अपने घर में देखें कि क्या वो दुआएं दूसरी सूरतों में कबूल नहीं हो रही। क्या आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा? क्या आपको पहनने को कुछ नहीं मिल रहा? क्या आप देख नहीं पा रहे? क्या आप सोच नहीं पा रहे? क्या आपका जिस्म ठीक नहीं है? क्या आपके हाथ पैर ठीक नहीं है? ये भी एक नेमत है, ये भी दुआएं हैं। अल्लाह पाक अगर आपकी दुआ में देरी हो रही है, उसकी कोई वजूहत है, अल्लाह पाक ने आपको वो ज़रूर अता फरमाएगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो तो है ही देने वाला, उसके खजाने तो भरे हुए हैं। मगर वो अपने बंदों को देखता है कि ये मुझे कितना तलब करता है, मुझ पर कितना यकीन रखता है, सब्र कितना करता है, सबसे बड़ा सब्र है। तो नाजरीन, सब्र किया करे तो क्या हुआ, अगर आपकी दुआ में 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, नहीं कबूल हो रही, तो अगर इस जहान में कबूल नहीं है तो वो आपके आखिरत के लिए हो जाएगी। ये कितनी बड़ी जीत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ इस जहान में भी कबूल फरमाएंगे और आखिरत में भी आपके लिए भलाई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी सबकी, सब मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की सबकी दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाजरीन, जब भी आप दुआ करें तो दिल से दुआ किया करें। ये ना सोचा करे कि मुझे तो दुआ आती नहीं है, मैं ये दुआ कैसे याद करूं, मैं दुआ पहले याद करती हूँ फिर बोलती हूँ, नहीं। जो भी दिल में आ रहा है आंसुओं के साथ अल्लाह से बात कर लिया करो। वो जो आपके अंदर से दुआ निकलती है ना, अंदर से लफ्ज निकलते हैं जो आपकी, चाहे जुबान में हो, चाहे कोई किसी भी तरह की जुबान में हो, जो आपके अंदर से वो निकलेगा ना लफ्ज, वो आज तक जाएगा। और आपकी आंखों से निकला हुआ आंसू, आप सोचते हैं कि मैं इतना रोता हूँ या रोती हूँ और इतना मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। आपको पता है आपके आंख से एक आंसू निकल रहा है, वो आपके आखिरत तक वो खजाना है आपके लिए। आपकी आंखें आपके लिए गवाही देगी कि अल्लाह, ये बंदा या बंदी तेरे लिए रोई थी, तेरे लिए रोती थी, तुझे याद कर कर रोती थी। इसलिए कोशिश किया करे, दुआ करा करे। जब भी आप नमाज अदा करने जाए, नमाज करने के बाद आप फौरन उठ ना जाया करें।
अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह से अपना दर्द दुख जितना भी हो, जैसा भी हो, आप अल्लाह से बात किया करें। अल्लाह आपका दोस्त है, और ऐसा दोस्त है जिसने आपके पर्दे ही रखने हैं, पर्दे ज़ाहिर नहीं करने। दूसरे दोस्त तो ये होते ना कि दुनियावी, जो आपने उसको बताया तो उसने तो पर्दा फाश कर दिया आपका। वो तो पर्दे ढकने वाला है, आपकी इज्जत रखने वाला है। वो तो इज्जत रखने वाला है, इज्जत अता फरमाने वाला है। तो दुआओं का कोई वक्त नहीं है, जब भी आप चाहे, या चाहे बैठे हैं, सोए हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, दुआ करें। और दुआ की कोई जुबान नहीं होती, जिन्हों की जुबान नहीं होती, क्या वो दुआ नहीं करते? होती है ना। तो दिल में बैठे बैठे दुआ करते हैं, और दिल में बैठे बैठे दुआ किया करे। दिल की दुआ तो जल्दी अर्श तक पहुंच जाती है, जल्दी अल्लाह पाक देखते हैं। और ऐसा हो जाता है कि जब हमारी दुआ में देरी होती है ना, इसमें भी बड़ा कमाल है। आप देखें ना कि हमें आसानी से अगर वो चीज़ मिल जाती है जो हम मांग रहे हैं, तो क्या हम उसकी चीज़ के लिए ऐसे रोएंगे? नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे। और अगर हम रो रहे हैं ना, तो उसमें देरी हो रही है, तो उसमें भी वो राजी है। वो कैसे? कि क्या पता उसको आपका रोना है वो पसंद आ गया है। मैंने एक बात सुनी थी मौलाना तारिक जमेल की, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। उन्होंने कहा था कि एक फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते भी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तेरी बंदी या तेरा बंदा रो रहा है, तो तू उसे अता कर दे। तो अल्लाह अल्लाह पाक बोले उन्हों से, अगर मैं अभी इसे अता कर दूंगा तो ये नहीं रोएगा मेरे लिए, मुझे इसका रोना इतना पसंद आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और ले। अगर अल्लाह पाक आपको रोते हुए इतना पसंद कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, तो यार मैं तो चाहती हूँ कि सारी दुनिया, सारा उम्र बंदा रो सकता है अल्लाह पाक के लिए। क्योंकि हमारे जो ये आंसू है ना, इसी ही दुनिया में है। वहां तो ना आपको रोना आएगा, ना ही आपकी कोई ख्वाहिश होगी उस जहान में। तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ किया करे, दिल से किया करे, तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ कबूल होगी। तो नाजरीन, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।